Hi, this is Anand Rathi. Welcome to my channel Mind Your Logic Maths and Science. और आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 10th NCERT, that is tangent to circle. Before going to tangents to the circle, we should focus on the basic properties of circle. जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है, वो कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ होंगी. बट फिर भी हमारा जो चैप्टर है उसमें मेनली एक ही एक्सरसाइज है, दैट इज़ रिलेटेड टू टेंजेंट टू सर्कल. बिफोर दैट अगर हम एक सर्कल लेते हैं तो हमने 9th क्लास में एक बार रिकैपिचुलाइजेशन हो जाएगा. 9th क्लास में के अगर सर्कल है, जो आपके कॉन्सेप्ट है कोड इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम equal chords are equidistant from center. If these chords are equal, then these are equidistant from center. And that cyclic quadrilateral, if any quadrilateral can be fit into the circle, that to be said to be a cyclic quadrilateral. इसकी प्रॉपर्टीज यूज हो सकती है किसी क्वेश्चन में. अपोजिट एंगल्स, sum of opposite angles of the cyclic quadrilateral are 180 degree, and similar and angle subtended by an arc or a chord, angle subtended by arc or chord at center is double to the angle subtended by same arc or chord at remaining part of circle. ये आपने 9th क्लास में पढ़े थे. इनमें से जैसे जैसे कोई भी प्रॉपर्टी यूज होती है तो विल revise that particular theorem of 9th class. जो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी जो क्वेश्चंस यूज हो रहे हैं वो है जो मेन थ्योरम है, दैट इज इफ ए सर्कल इज गिवन एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, द लाइन टचिंग लाइन इज नोन एज, सपोज दिस इज PA. Okay, PT you can say that PT is a tangent to that circle. If another tangent is drawn from P to this circle, that is if this is Q, so we can write PT is equal to PQ. Or tangents from a point are equal in length. अगर छोटा सा क्वेश्चन ये आ जाए हमारे पेपर में, प्रूव दैट दिस why these two tangents are equal, you can construct this. यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और यूज कर सकते हैं आप कि ऑलवेज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. दिस इज these two theorems are main theorems of this chapter. Tangents from any point are equal and tangent is perpendicular to radius. अगर ये क्वेश्चन आ गया तो by RHS, by radii, these are radii, this is 90 degree, this is common side, this is a hypotenuse also. By RHS this triangle can be congruent to this. These triangles are congruent. By doing this you can find out this tangents are equal. और ये भी पूछा जा सकता है वाई दिस लाइन टचिंग टू सेंटर बाइसेक्ट, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाई CPCT, और ये भी इसके इक्वल हो जाएगा बाई CPCT. ऑल दिस प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड इन कमिंग क्वेश्चंस. भी ध्यान दीजिए. और इफ इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सिंस टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, तो यू मस्ट फोकस दिस. इफ टू ऑफ द साइड्स आर गिवन देन यू कैन फाइंड द थर्ड साइड बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आता है. इफ यू विल बी गिवन और रेडियस और लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन center to that particular point, or anything point distance given and radius given, you can be asked the length of
tangent, or if these two sides are given, radius can be asked. इस यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन श्योर बन जाता है। अब हम चलते हैं NCERT जो बुक है उसके कुछ क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल। See this. One of the example number 3 is very important question. A circle is given with a chord length of 8 centimeter of radius 5 centimeter. Okay, this is 5 centimeter is given. PQ is a chord of length 8 centimeter of circle radius 5 centimeter. The tangent at P and Q intersect the point T. Okay. इससे यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, सपोज एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है और ये PQ इज द chord given, this O is the center given और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, यहाँ से इस पॉइंट से टेंजेंट इज ड्रॉन, they are intersecting at point T. We have to find the length of PT or QT. देखिए ध्यान से देखेंगे, ज्वाइन जैसे कि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि अगर ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, दिस इज कॉमन। द होल OPT ट्रायंगल बाय SSS क्राइटेरिया कैन बी सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट विद OQT। ठीक है, by this we can assume that this angle is equal, this is equal to this is equal to this, and by this is radius, this is also radius, or this is a common side. These triangles can be this O if this point is M. PMO triangle is also congruent to QMO, and since this angle will be equal to this and they are that adjacent angles or straight angles on a straight line, they are equal and their sum is 180 degree, that can be said to be these are perpendicular. ये इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये जरूर बताना पड़ेगा these are perpendicular. डायरेक्ट भी आप बताओगे तो आप you can state in a one line that why this is perpendicular. Okay, if this is a perpendicular, if chord length is and this is bisecting, by simplicity हमें ये पता लग गया कि PM is equal to NQ. If chord length was 8 और ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 5 है, ये 4 है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको ये 3 पता लग जाएगा। ओके, इसी फिगर को थोड़ा सा रिमाइंड करिए, थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेते हैं दोबारा से इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से करने जा रहे हैं। ध्यान देखिए, radius, okay, this is sorry, this chord is given PQ, or this is 5 centimeter, 8 centimeter, or tangent is drawn to this is tangent drawn to this is joint in 90 degree, ये सब हम प्रूव कर चुके हैं, this is 4 और ये हमें पता लगा 3 सेंटीमीटर। इतना दिया हुआ हमें PT फाइंड आउट करना है। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय 3 ways. बाय यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, सबसे इजी वे है इस क्वेश्चन को मैं रिकमेंड करूंगा, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप इसको सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से करिए। आपने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में
एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एंड दिस इज आल्सो 90 डिग्री बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। हमने सिमिलरिटी का वीडियो अगर आप चेक कर सकते हैं, अगर किसी को डाउट है। इफ दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन दिस, all three triangles are similar to each other। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, देखिए ये परपेंडिकुलर है, दिस इज आल्सो 90 डिग्री, सेम कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड हियर। हमें देखना है, हमें पीटी फाइंड आउट करना है, तो वी हैव टू टेक टू सच ट्राइंगल जिसमें हमें कम से कम एक साइड पता हो और दूसरी साइड, और इसकी तीनों साइड पता है। ये दिस पॉइंट इज एम, तो हम यहाँ नेमिंग करते हैं PMO। triangle PMO is similar to triangle। नेमिंग इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, आपको नेमिंग उसी तरह से करना है। PMO is similar to TMP, and or you can say similar to, if, and you can also write this triangle is similar to whole triangle TMP। यहाँ देखिए TMP, तो पूरे में जाएगा TPO। आप एंगल्स पर बहुत फोकस करना है, और यू कैन टेक दिस एंगल इज, लेट्स this angle is theta, this whole angle is 90 degree, this will be 90 minus theta। If this is 90 minus theta, this will be surely theta, this is 90 और this will be 90 minus theta। और अगर हम PMO देखते हैं, ध्यान से देखना फिर से, PMO थीटा 90 90 माइनस थीटा, PMO थीटा M 90 90 माइनस थीटा, TPO थीटा TPO थीटा 90 होल 90 माइनस थीटा। अब इस ट्राइंगल की हमें तीनों साइड पता है। बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस ऐसे क्वेश्चंस में। अगर इसकी तीनों साइड पता है, ये तो श्योर लेंगे ही लेंगे हमें, और दूसरी इनमें से कोई भी आपकी मर्जी है वो ट्राइंगल आप ले सकते हैं। सपोज इसमें से आप कोई भी ले लो, हम एक को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। हमें PT, वी नीड टू फाइंड PT, हमें वो लेनी पड़ेगी वो साइड। तो वी कैन राइट TP, PT और TP, तो PO बाई PT इज इक्वल टू, अब हमें वो साइड लेनी है दोनों ट्राइंगल्स की जो हमें नोन है, और इस TMP ट्राइंगल में, TMP ट्राइंगल में PM हमें पता है, तो PM आज अगर लेंगे तो हमें MO बाई PM लेना पड़ेगा, MO बाई PM। यहाँ जरूर लिखना पड़ेगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और क्योंकि एक बार जब ट्राइंगल सिमिलर होगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। देखो PO is 5, PT हमें पता करना है, MO देखिए, MO is 3 सेंटीमीटर, और PM is 4 सेंटीमीटर। By this you can find out PT is 20/3 सेंटीमीटर। This is the answer। और इस ट्राइंगल को इसके सिमिलर भी प्रूव कर, अगर आप सिमिलरिटी लगाते तो भी यही आंसर आएगा। यू कैन ट्राई एट योर ओन। तो ये बच्चे कई बार गलती कर देते हैं कि मैं कौन सी दो ट्राइंगल को सिमिलर करूं। ये ट्राइंगल जरूर लेनी है आपको जिसकी तीनों साइड हमें पता है, और बाकी और कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं, पर नेमिंग बहुत जरूरी है। ओके भाई, अब नाउ दिस सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड विद यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से तो हमें ये तो पता ही लग गया था, इफ दिस इज 5 4 3। ओके, लेट्स वी नीड टू फाइंड दिस। टेक दिस x और PT, लेट्स दिस बी दिस x, टेक दिस TM इज x। तो इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो यू कैन से PT स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर।
In triangle T and P, use Pythagoras. First equation. Second, you can use this TPO triangle, whole triangle. तो इसमें hypotenuse will be x plus 3. तो x plus 3 whole square is equal to 5 square plus pt square. Or you can say x plus 3 का whole square minus 5 square is equal to pt square. और इन दोनों, ये भी pt स्क्वायर के इक्वल है, ये भी pt स्क्वायर के इक्वल है. बाई 1 और 2 you can write, replace pt स्क्वायर with this. तो pt स्क्वायर, अगर फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ रख दे, pt स्क्वायर कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. सोल्व कीजिए. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab minus 25 is equal to x square plus 16. x square will get cancelled with x square. तो हम कह सकते हैं 6x is equal to 6x will be equal to this will be 16 plus 25 minus 9. तो x will be 32 by 6 और you can say 16 by 3. और x की वैल्यू अगर 16 by 3 होगी तो put in the any of the equation you will find pt will be 20 by 3. इसको आप आराम से ट्राई करके देख लेना. अगर आप उसी any of the equation, जो दो इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें अगर हम ये रखेंगे 16 by 3 x की वैल्यू, तो pt की वैल्यू आपको 20 by 3 आ जाएगी. ओके, सेम रेशियोज कैन बी अप्लाइड बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. अगर ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज लोगे तो सेम रेशियोज आ जाएंगे एज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल आए थे. तो अगर इसी एंगल को लेके हम यहाँ पे एक लगाते हैं, अगर सपोज लेट्स यूजिंग दिस थीटा, तो हमें ये साइड पता है और ये करनी है, तो हम यू कैन यूज sin theta is equal to, since we are aware that this angle is same as this angle, हमने पिछले जो कॉन्सेप्ट में ये यूज किया था, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. तो यू कैन अप्लाई द sin theta in this triangle also. sin theta will be 3 by 5 और दोनों सेम एंगल्स के रेशियो है, तो आप 4 इनको इक्वेट करोगे. 4 by pt is equal to 3 by 5, तो pt will be 20 by 3 सेंटीमीटर. और दिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर सेम, वही रेशियो आएंगे जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से आए थे. तो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई भी एक्सरसाइज से, और अगले वीडियो में हम जो भी आपके इस चैप्टर से डाउट होंगे वो ले लेंगे. लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नंबर 12. A triangle is given. And one circle is there. A, B. Or make a slightly bigger one. And circle is there. Draw first circle, and a triangle is such that it touches all its sides. In triangle ABC drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm. Radius of this circle is given 4 cm. And this segment ABC is given A, B, C, and this point is D. This will be definitely perpendicular, as tangent is always perpendicular to radius. This is 6 centimeter given, this is 8 centimeter given, ये 4 centimeter radius of the circle is given. We need to find the side AB and AC. ध्यान से देखो,
इफ दिस इज 6, दिस डेफिनेटली ये पॉइंट अगर हम ई और ये पॉइंट एफ ले लेते हैं तो ये भी 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 हो गया। इफ दिस इज 8 सेंटीमीटर, डेफिनेटली दिस 8 सेंटीमीटर, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम वन पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। तो हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ ए सी एंड ए बी। अगर ये पता लग जाए हमें तो इतना ही ये होगा, तो सेम साइड्स इसका जो भी x की वैल्यू होगी दैट प्लस 6 और यहाँ दैट प्लस 8 विल बी साइड्स ऑफ ए सी एंड ए बी, जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स दिस साइड x, okay, this join this, these are also perpendicular because radius is always perpendicular on tangent or tangent is always perpendicular to radius। इसका एक ही तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, पूरी ट्राइंगल का बाय यूजिंग हीरोन फॉर्मूला फाइंड द एरिया एंड फाइंड द एरिया ऑफ COB, AOB एंड AOC, तीनों का मिला के पूरी ट्राइंगल का एरिया का इसका हीरोन फॉर्मूले से एरिया निकालने के बाद ऐड कर दीजिए। ओके, यूज हीरोन फॉर्मूला। फर्स्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बाय यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। तो हमें हीरोन फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S is semi-perimeter here, A, B, C are sides of triangle. So what will be the S here? 8 plus 6, 14, 28 plus 2x. So S will be 14 plus x. 28 plus 2x divided by 2 is 14 plus x. So semi-perimeter is 14 plus x मल्टीप्लाई 14 प्लस एक्स में से अगर 14 होगा माइनस जाएगा तो दिस हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा, और x प्लस 8 प्लस एक्स माइनस होगा तो इट विल बी 6, और 6 प्लस x होगा तो इट विल बी 8। आप आराम से वीडियो को पॉज करके तब भी कर सकते हैं, ध्यान से देख लेना। दिस विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ by using the Heron formula। 48x within bracket 14 plus x। ओके, ये ध्यान रखिए, ये आपका एरिया है। सेम एरिया कैन बी, अगर इसी ट्राइंगल का एरिया बाय यूजिंग सम ऑफ ऑल 3 smaller triangle COB plus AOB, AOC. Since these radius are perpendicular, what will be the area of COB triangle? Half into base into height. हमें पता है सब रेडियस 4 सेंटीमीटर है। दिस एरिया विल बी फर्स्ट एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया होगा हमारा हाफ इंटू बेस 14 इंटू 4 प्लस इस ट्राइंगल का होगा हाफ इंटू 8 प्लस एक्स इंटू 4, और थर्ड ट्राइंगल का होगा, थर्ड ट्राइंगल ये होगी, थर्ड ट्राइंगल इस ट्राइंगल का होगा हाफ इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 4। इसको सोल्व करेंगे तो हम दिस विल बी 28। इस ट्राइंगल का एरिया होगा COD का 28, और इसका होगा 2 विल गेट कैंसिल विद 4, दिस 2 विल गेट कैंसिल विद 4। ओके, यहाँ आ जाएगा 16 प्लस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 2x, इसको सॉल्व करेंगे 16 प्लस 2x, और दूसरी ट्राइंगल को 12 प्लस 2x, 12 प्लस 2x।
whole will be 56 plus 4x, this much centimeter square. ये भी एरिया ही है पूरी होल ट्रायंगल का, और ये भी उसी ट्रायंगल का एरिया है. इक्वेट दिस टू. ओके, इसको इक्वेट कर लेते हैं. 56 प्लस 4x को इक्वल कर देते हैं हम रूट 48x इंटू 14 प्लस x, क्योंकि एरियाज ऑफ सेम ट्रायंगल बाय डिफरेंट मेथड. इफ विल टेक 4 कॉमन फ्रॉम एयर, तो दिस विल बी 16 का रूट 4 हो जाएगा, तो दिस विल बी 3. 16 3 जा 48, तो 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4. और टेक 4 कॉमन फ्रॉम एयर. Take 4, if you take 4 common from here, you will be left with 14 plus x. This 4 will get cancelled with this 4. Now squaring both sides. If you square both sides, you will get 14 plus x whole square is equal to 3x into 14 plus x. 14 plus x will get cancelled with one of the 14 plus x to be square. Here you will get 2x is equal to 14, x is equal to 7. x 7 centimeter आ जाएगी. Whole side AC is 7 plus 6, 13 centimeter, and AB is 7 plus 8, 15 centimeter. इसको रिपीट करिए, और पूरी एक्सरसाइज है 10th चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है मेनली, और उसी से आपको क्वेश्चन मिलता है. जो मैंने थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को और थोड़े से इम्पोर्टेंट भी हैं, वे क्वेश्चन मैंने आपको कवर किए. और जितने भी आपके डाउट्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए. डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. थैंक यू.